Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, I'm going to talk about the difference between two prepositions of time. आज की इस वीडियो में हम तो prepositions of time को डिस्कस करेंगे और उनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे. So let's see what they are and how they are used. The prepositions are by and until. We have two prepositions by and until, and they are prepositions of time. ये कौन से prepositions of time? They are used in similar way but they are different. ये similar way में use हो सकते हैं and होते भी हैं, but ये दोनों क्या है, different है. That's why students get confused. Students confused हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही way में use होते हैं. अब कैसे? So let's see some example और उनके difference को हम समझने की कोशिश करते हैं. Get your assignment submitted by Monday. Get your assignment submitted by Monday. And another example is you must be at the party by 1 p.m. By 1 p.m. He ought to have arrived by now. By now. Now, let me tell you what does the word by mean here. यहाँ पे by का मतलब क्या है? When you say या when your teacher says to you get your assignment submitted by Monday, आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं कब तक? मंडे तक. अब इसका मतलब दो मतलब है. You are supposed to get your assignment submitted either before Monday, मंडे से पहले, या on Monday, मंडे से पहले और मंडे पे, but not later than that, not later than this deadline. जो भी डेडलाइन आपको दी गई है उससे पहले या एग्जैक्ट उस डेट पे, उस डे पे, बट उसके बाद नहीं, उसके बाद वो काबिल कबूल नहीं होगी. सो बाय का मतलब क्या होता है? नाउ गेट योर असाइनमेंट सबमिटेड बाय मंडे. आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएं मंडे से पहले या मंडे तक, लेकिन मंडे के बाद नहीं, मंडे के बाद नहीं. Another example is you must be at the party by 1 p.m. इसका मतलब क्या है? 1 बजे से पहले पहले आप वहां पहुंचे पार्टी में, या 1 बजे, बट नॉट लेटर देन 1 p.m. 1 बजे के बाद नहीं, एग्जैक्ट 1 बजे पहुंचे या 1 बजे से पहले पहले. यू हैव टू बी देयर 12 बजे, 12:30 पे, 12:45 पे, 12:50 पे, तो ये जाके एग्जैक्ट 1 बजे तक यू हैव टू बी देयर बट नॉट लेटर देन 1 p.m. Likewise, he ought to have arrived by now. अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था, अब तक उसे यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए था. He ought to have arrived by now. या you can simply say he should be here by now. He should be here. He should be here by now. अब तक उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था. अब तक का मतलब क्या है? अब से पहले या ज्यादा से ज्यादा लेट भी कितनी? अब तक, जो कि हमारी डेडलाइन, जो कि टाइम फिक्स था, लेकिन अब बहुत ज्यादा क्या हो गई है? दे मतलब वी आर गेटिंग लेट नाउ. सो हम क्या कहते हैं? ही ought to have arrived by now, या सिंपली ही शुड बी हियर बाय नाउ. अब तक उसे यहाँ पे होना चाहिए था. आई होप कि आप बाय का यूजेज आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स सी कि until कैसे यूज हो. until हम until यूज करते हैं when, किस कॉन्टेक्स्ट में? What does it mean? It means कि when you start doing something, या you continue doing something, you continue doing something up to a certain time in future. Up to certain time in future. जब तक मतलब कब तक आप जो है वो काम करते रहते हो, जब तक. तो उसका मतलब you start doing something from now and आप ये you continue doing it up to certain point in future. वो मतलब फ्यूचर में उस टाइम तक आपने वो काम करना है. एंड व्हाट यू हैव टू बियर इन योर माइंड वो ये है कि जो until है ये बाय की तरह इट इज preposition of time, but unlike by it is also a conjunction. by हमारा conjunction नहीं है, whereas until is both a preposition and conjunction. until जो है हमारा preposition भी है and conjunction भी है. लेकिन कैसे पता चले कि ये preposition है या it has been used as a conjunction in the sentence? एक आसानी तरीका है. the number first sentence में आप देखें, let's wait until the rain stops. Let's wait until the rain stops. What am I saying? Let's wait. आए इंतजार करते हैं कब तक?
जब तक बरसात बंद नहीं होती। बरसात के बंद होने तक हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। नाउ यू सी देयर आर टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस है। एक है लेट्स वेट, आए इंतजार करते हैं, एंड अनदर इज द रेन स्टॉप्स, या व्हेन यू से इट स्टॉप्स रेनिंग। सो बेसिकली दीज आर टू क्लॉजेस, ये दोनों क्लॉजेस हैं एंड दे हैव बीन कनेक्टेड विद दिस कंजंक्शन। तो यहाँ पे until जो है that has been used as a conjunction, लेकिन ये फिर यहाँ पे भी as a conjunction टाइम को ही रेफर कर रहा है, टाइम को ही शो कर रहा है। सो लेट्स वेट, इंतजार करते हैं कब तक, until the rain stops। It means कि we have to start waiting right now। हमें अभी जो है वो वेट करना स्टार्ट करना है। कब तक, certain point in future। कब तक मतलब बारिश के बंद होने तक। बारिश के जैसे ही बंद होती है then we will stop waiting। उस समय हम क्या करेंगे, we will stop waiting, हम इंतजार करना बंद कर देंगे। Likewise we have another sentence, you are not going out until 5 p.m। अब यहाँ पे ये जो until है that has been used as a preposition, ये एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ है, एज अ कंजंक्शन नहीं। कंजंक्शन तभी यूज होता है व्हेन इट कनेक्ट्स टू क्लॉजेस, जब ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट वुड बी अ कंजंक्शन। इफ इट इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन, अगर ये किसी नाउन से पहले यूज होता है, सो देयर इट वुड बी प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन होगा। वो तो हो गया एक ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिफरेंस, ओके। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द जो है इनके यूजेज को आपने समझना है। अंडर जो इम्पोर्टेंट क्या है, इनके यूसेज को समझना। You are not going out until 5 p.m. What does it mean? It means कि you are here, आप यहाँ हैं, and you will stay here, आप यहाँ पे रहेंगे। कब तक, 5 बजे तक। 5 बजे तक आपने यहाँ रहना है, इस कमरे में रहना है। It means you are not going out, आप बाहर नहीं जाओगे until 5 p.m. 5 बजे तक। It means कि 5 बजे के बाद you will go out, आप बाहर चले जाना। So that's up to you, okay? Likewise अब इस एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, इसका जो मैंने जो मीनिंग लिखी है until की, दैट इज कंटिन्यू डूइंग समथिंग अप टू अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। मतलब यू स्टार्ट डूइंग समथिंग अभी नाउ एंड यू कंटिन्यू डूइंग इट इन फ्यूचर। आप फ्यूचर तक, फ्यूचर की कोई भी डेडलाइन जो दी गई है, जो भी टाइम है, उस वहाँ तक आपने उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। इस सेंटेंस में आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ही कंटिन्यूड वर्किंग अप until his death। इस सेंटेंस में भी इट हैज बीन यूज्ड एज अ preposition। he continued working up until his death। अपनी डेथ तक वो क्या करते रहे, वो काम करते रहे। इट मीन्स ही जो है he continued working कब तक, until his death, अपनी जो है डेथ तक। Likewise we have another sentence, the street is full of traffic। the street is full of traffic, या you can say the street is crowded, वहाँ बहुत भीड़ है। The street is full of traffic, बहुत ट्रैफिक है। कब से लेके कब तक, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेके। इट मीन्स के जो है मॉर्निंग से स्टार्ट होती है, क्या स्टार्ट होती है, ट्रैफिक स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग एंड इट कंटिन्यूज कब तक, अंटिल नाइट, रात तक ये क्या रहती है, ये कंटिन्यू रहती है। अब लेट मी टेल यू कि बाय आप कब यूज करते हो, बाय आप तब यूज करते हो बिफोर और एट द जो है डेडलाइन, बिफोर उससे पहले या डेडलाइन तक, लेकिन डेडलाइन के बाद नहीं। वेयर एज अंटिल आप कब यूज करते हो, आप यूज करते हो अंटिल व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ भी आप स्टार्ट करते हो काम राइट नाउ एंड यू कंटिन्यू डूइंग इट, उसको आप कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे अंटिल जो है कोई भी आप जो है टाइम जो डेडलाइन है वहां तक। फॉर एग्जाम्पल आई व्हेन यू कॉल में आप पूछते हैं कि आप कहाँ पे हैं, आज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सो व्हेन आई से कि वेट अंटिल आई रिटर्न, वेट अंटिल आई रिटर्न। इट मीन्स कि मेरे वापस आने तक आप क्या करें, यू हैव टू वेट हियर। आप यू कंटिन्यू वेटिंग, यू स्टार्ट वेटिंग राइट नाउ एंड यू कंटिन्यू डूइंग इट अंटिल आई रिटर्न। मेरे वापस आने तक आपने क्या करना है, आपने वेट करते रहना है। सो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, अंटिल आई विल बी यूजिंग। नाउ हम जो है इन दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि बाय एंड अंटिल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। Now you will understand the difference between by and until। अब आप by and until के difference को समझ जाएंगे with these examples, in examples से। but उससे पहले let me tell you कि जो until है ये अपने reduced form में भी use होता है। it means कि until की जगह पे informally you can also use till, till, or
T-I-L, till. These both can be used to replace until informally. Informally means in spoken language you can use them, whereas in written language आपके अगर जो written है आप writing, if you are writing an essay या anything, तो आप क्या यूज करेंगे? until यूज करेंगे. That's the most appropriate informal setting. Now come to the difference between these two. अब इन दोनों के डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं with same examples. सेम एग्जाम्पल्स हैं. Now first sentence is he will be away until Monday. He will be away until Monday. And मैंने आपको until का मतलब क्या बताया था? आप until यूज करते हो when you start doing something right now and you continue doing it up to a certain point of time in future. आप कोई चीज अभी स्टार्ट करते हैं करना और उसको आप कंटिन्यू रखते हैं, करते रहते हैं. आप कब तक? जब तक कोई भी मतलब जो डेडलाइन आपको दी जाती है या खुद से आप जो है एक मुकर्रर वक्त तक. ओके. एंड यू यूज बाय. अब बाय यूज करते हो व्हेन यू मीन टू से कि उस डेडलाइन से पहले, बिफोर, और फिक्स एग्जैक्ट उस डेडलाइन पे एट, बिफोर और एट द डेडलाइन, बिफोर और एट द डेडलाइन या ऑन द डेडलाइन. इफ देयर आर डेज, अगर डेज है तो आप क्या यूज करते हो? ऑन डेज. या एट जो है वो यूज करते हो आप एग्जैक्ट टाइम के लिए. तो नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस. अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इन उर्दू. ही विल बी अवे अंटिल मंडे. इसका मतलब क्या है कि वो मंडे तक क्या रहेगा? दूर रहेगा. मंडे तक. ही विल बी ऑफ. वो अपने काम से या वो छुट्टी पे है. कब तक? मंडे तक. मंडे तक वो दूर रहेगा. मंडे, इट मीन्स कि मंडे तक का मतलब क्या है? ही विल बी बैक ऑन मंडे. ही विल बी बैक ऑन मंडे. वो मंडे तक वापस आ जाएगा. इट मीन्स कि मंडे तक वो यहाँ से दूर रहेगा. ही विल बी बैक बाय मंडे. इसका मतलब क्या है? ही विल बी बैक बाय मंडे. मंडे से पहले पहले या मंडे तक वो आ जाएगा. मंडे से पहले पहले या मंडे तक वो आ जाएगा. नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इसमें क्या था? ही विल बी अवे अंटिल मंडे. वो मंडे तक दूर रहेगा. मंडे तक जो है वो अपनी छुट्टियों पे रहेगा. इट मीन्स मंडे तक अपनी छुट्टियों पे रहेगा. कब? क्या मतलब है कि मंडे पे वो वापस आ जाएगा. लेकिन इसका मतलब क्या है कि ही विल बी बैक बाय मंडे. वो मंडे से पहले भी आ सकता है. इट मीन्स कि ही कैन कम ऑन संडे, ही कैन कम ऑन सैटरडे. वो सैटरडे, फ्राइडे, संडे को आ सकता है वापस. अगर नहीं तो वो मंडे तक आ जाएगा. एंड दैट्स फॉर श्योर. और ये यकीनन वो मंडे तक आ जाएगा. इट मीन्स कि नॉट लेटर दैन मंडे. नॉट लेटर दैन मंडे. लेट नहीं करेगा, मंडे तक पहुंच जाएगा. We have another example as well. I will be working until 5 p.m. I will be working until 5 p.m. What does it mean? इसका क्या मतलब है? I have started doing something. I have started working. मैंने काम करना शुरू किया है. And I will continue doing it. और मैं ये करता रहूंगा. कब तक? 5 बजे तक. It means कि I have started doing it now. मैंने अभी स्टार्ट किया है. And I will continue doing it. इसको कंटिन्यू रखूंगा. कब तक? 5 बजे तक. सपोज करें अभी 2 बजे हैं, तो 2 बजे आई स्टार्ट डूइंग समथिंग. एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बजे से कब तक मैं जो है इसको स्टार्ट मतलब कंटिन्यू रखूंगा? 2 बजे से 5 बजे तक. इट मीन्स कि व्हेन 5 बज जाते हैं, आई विल स्टॉप वर्किंग. आई विल स्टॉप वर्किंग. आई विल स्टॉप वर्किंग एक्सेप्ट एट 5 p.m. 5 p.m. पे एक्सेप्ट मैं क्या अपना काम जो है वो बंद करूंगा. आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 p.m. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि मैं जो है आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क. मैं काम खत्म कर लूंगा होपफुली बिफोर 5 p.m. मैं जो है वो अपना काम खत्म कर लूंगा 5 बजे से पहले. अगर 5 बजे से पहले खत्म नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा? एट 5 p.m. एग्जैक्ट क्या उसको खत्म करूंगा. ठीक है. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनका मतलब सेम है. ये सेम नहीं है. दे आर यूज इन सिमिलर वे. एक वे में यूज होते हैं बट दे मीन डिफरेंट. इनका मतलब जो है वो क्या है? मुख्तलिफ है. आई विल बी वर्किंग अंटिल 5. इट मीन्स कि यू स्टार्ट डूइंग समथिंग. इसमें नाउ का मतलब आ जाता है. इसमें नाउ का मतलब आ जाता है. मीन्स अब से लेके तब तक, अब से लेके 5 बजे तक, अब से लेके जो है मंडे तक, आज से लेके मंडे तक, जो जनवरी से लेके फरवरी तक. ठीक है. फरवरी से लेके अगस्त तक. ठीक है ना. लाइकवाइज 2 बजे से लेके 5 बजे तक, सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह तक. तो हम क्या यूज करेंगे? अंटिल यूज करेंगे.
जिसमें नाउ का मतलब आ जाता है एंड यू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, आप कंटिन्यू करते हो। लेकिन इसमें जो है वो नाउ का मतलब नहीं आता, इसमें नाउ का मतलब नहीं आता। इट मीन्स कि आई कैन जो है स्टार्ट डूइंग समथिंग एट 4 PM, मैं 4 बजे भी कर सकता हूँ। आई कैन स्टार्ट डूइंग समथिंग एट 4:45, मैं 4:45 पे भी काम जो है कर सकता हूँ। बट आई हैव टू मेक श्योर, मुझे ये मेक श्योर करना है कि आई हैव टू फिनिश इट बिफोर 5 PM और एट 5 PM मुझे 5 बजे से पहले पहले या एग्जैक्ट 5 बजे उसको क्या करना है, खत्म करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, बाय। आई रिपीट माई सेल्फ, वेन यू यूज अंटिल, आप अंटिल यूज करते हो उसमें नाउ एंड ये कंटिन्यू जाएगा अप टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, वहां तक ये कंटिन्यू जाएगा। तो आप क्या यूज करते हो, अंटिल। उसमें मतलब क्या, इट मीन्स कि आई विल बी वर्किंग अंटिल 5 PM, इट मीन्स मैं अब से लेके 5 बजे तक जो है काम करता रहूंगा। बट व्हेन यू से आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय 5 PM, इट मीन्स कि मैं 5 बजे से पहले पहले या 5 बजे अपना काम खत्म कर लूंगा। इट मीन्स कि नो मैटर व्हेन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग, मैं कब जो है व्हेन आई स्टार्ट डूइंग माय वर्क, मैं कब स्टार्ट करता हूँ, वो इसका वो जो है उसका नाउ का मतलब इस सेंटेंस में बाय के सेंस में नहीं आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। Like the video and share it, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.